going to start recording now. Here is the statement of question number 5, and statement is find the difference between greatest and least number that can be written using digits 6, 2, 7, 4, 3 each ones only. अगर आप हर digit जो आपको given है, I have written those digits on the board, इसको एक एक बार ही use करो, तो इन digits को use करके greatest number और एक smallest number form करिए. You have to tell what is the difference between greatest and smallest number such form. Let us see which greatest number you can form from these digits. Greatest के लिए आप greatest सबसे पहले लिखिए, then 6, then is 4, 2, 3 and 2. और smallest के लिए छोटा लिख दो. So these are your greatest and smallest number using given digits. यही digits आपको use करने हैं जो given. Now you can subtract. Will be 5, 6, 9, 5 minus 3, 2 and 5. It is 5, 2, 6, 9, 9, 6, 5. This is your answer for question number 5. And this was a very easy question. Now is question number 7. And what is the statement? A merchant had, I can show you from the book. If you have, you can read from there. A merchant had rupees 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets and at rupees 1200 each. उसने 40 रेडियो सेट्स मंगवाए और एक रेडियो सेट की कॉस्ट थी 1200. हाउ मच मनी विल बी रिमेनिंग विद हर आफ्टर द परचेज. परचेज है खरीदना. जब वो परचेजिंग कर लेगी तो कितने पैसे उसके पास बाकी बच जाएंगे. ठीक है. सो इस क्वेश्चन में यू आर गिवन that cost of one radio set is rupees 1200 and we will find what is the cost of 40 radio sets. For that we will be multiplying this 1200 by 40 and the total money she spent on 40 radio sets is rupees 12 fours of 48 with 3 zeros. Here this is step 1 of question. Now is step 2 of the question. अब इसमें आपको रिमेनिंग पर मनी बताना है जितने पैसे उसके पास बच गए when she had spent on 40 radios. Now she had or merchant had, you can write rupees and that is 78,592. She spent rupees 48,000. Money left. That will be rupees 29503. That means 30592. This much money is left with her after she made the purchase of 40 radio sets. I hope this is clear to you. Statement is the distance, I am showing you from my book. The distance between the school and the house of a student's house is 1 kilometer 875 meters. Every day she walks both ways. Both way means वो घर से स्कूल और स्कूल से वापस घर आती है. Find the total distance covered by her in 6 days. तो वो 6 days में कितना distance cover करेगी. एक गर्ल है जो कि स्कूल से घर और घर से स्कूल आती है डेली. सपोज दिस इज स्कूल और ये है उसका घर. ठीक है. पहले वो स्कूल घर जाती है फिर उतना ही डिस्टेंस वापस आती है. उसके स्कूल में और घर में जितना गैप है वो आपको गिवन है एंड दैट इज 1 किलोमीटर 875 मीटर. इतना डिस्टेंस इसने घर से स्कूल जाते हुए कवर किया फिर उतना ही डिस्टेंस कवर करके वो वापस आ गई.
मीन्स वो एक दिन में पहले कितना कवर करती है, लेट अस सी। इसके भी टू स्टेप्स होंगे, टू स्टेप क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेप, डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम होम टू स्कूल, देन डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम स्कूल टू होम। जितना डिस्टेंस उसने जाते हुए कवर किया उतना ही उसने वापस घर आते हुए कवर किया। ठीक है, let us write how much the distance she covered. She covered 1 kilometers and 875 meters. इतना ही उसने वापस आते हुए कवर किया। दैट मीन्स उसने टोटल एक दिन में जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना था? डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे उसने किया 10, 15, 17, 3. So she covered 3 kilometers, 750 meters in 1 day. Now we have to tell how much she covered in 6 days. अगर आपके पास 1 day के लिए है and you need to find for 6 days, what you will do? You will be doing multiplication. So in step 2, we will multiply this distance by 6. Distance covered in 1 day, and that is 3 kilometers, 75 meters. Distance covered in 6 days. Multiply this by 6. 6 zeros are 0, 30, 3, 45. 4 will be here. This is 18, that was 22. So she covered 22 kilometers, 500 meters. Answer: 22 kilometers, 750 meter distance is covered by her in 6 days. Next is your question number 12, and this question is same as you have done yesterday. जैसा आपने yesterday को किया था same है, it is just same. I am showing you a book. A vessel has 4 liter 500 ml of curd. एक वेसल के अंदर 4 liter 500 ml curd है. In how many glasses each of 25 milliliter capacity can it be filled? अगर आपके पास ग्लासेस हैं और उन ग्लासेस में आपने ये कर्ड पोर करना है, कर्ड डालना है, तो कितने ग्लासेस लगेंगे? अब फिर से हाउ मेनी का क्वेश्चन है. जब भी हाउ मेनी के क्वेश्चंस आएंगे, जब आपको नंबर फाइंड करना होगा, कितने ग्लासेस कितनी बॉटल भर सकती हैं, तो फिर आप उसमें डिवीजन करते हो. बिगर जो टर्म है उसको स्मॉलर टर्म के साथ. अब बिगर टर्म इसमें से कौन सी है? ये जो पूरी कैपेसिटी पूरा कंटेनर में कर्ड है, और स्मॉलर कैपेसिटी है ये छोटे छोटे ग्लासेस की कैपेसिटी, दैट इज 25 ml. सो आप इन दोनों की डिवीजन करोगे. लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ. Question number 12. I have already told you that what is the statement here. So आप पहले लिखिए कितनी कैपेसिटी है वेसल की. Curd in vessel, and that is 4 liter 500 ml.
और जो स्मॉल ग्लासेस है उनकी क्या कैपेसिटी है? कैपेसिटी ऑफ वन ग्लास दैट इज 25 ml. The question that you had done yesterday, उसमें भी आपने डिवीजन करी थी, लेकिन उसमें मैंने बोला था डिवीजन से पहले आप ये चेक करोगे यूनिट सेम हो. इसमें ml है, इसमें ml और l दोनों है, तो आप इस लीटर को भी कन्वर्ट करोगे ml में. अगर 1 लीटर इज हैविंग यू नो दैट इज 1000 ml, तो 4 लीटर में हो जाएगा 4000 ml. So it will be 4000 ml plus 500. In all, it will be 4500 ml. 4500 milliliters जो कर्ड है वो टोटल है और एक ग्लास में 25 आएगा. So what you will write? Number of glasses that can be filled, and that will be 2500 divided by 20. Sorry, 4500 divided by 25. 4500 की डिवीजन करिए 25 से. 25 ones are 25 is 200, then 8, 200, 0 and finished. So how many glasses you can fill? 180 glasses can be filled. This is your final answer for question number 12. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू वंस. 12th क्वेश्चन में आपको गिवन था कि एक बड़ा कंटेनर है जिसके अंदर कर्ड है और उसको छोटे छोटे ग्लासेस में फिल करना है. ओके, सो आपने क्या किया, आपने जो बड़े कंटेनर की कैपेसिटी थी, बड़े कंटेनर में जो कर्ड था उसकी क्वांटिटी थी, उसको कन्वर्ट कर लिया मिलीलीटर्स में ताकि दोनों के यूनिट सेम हो जाए. ओके, तो जब आपने उसको चेंज कर लिया मिलीलीटर्स में, अब उसके बाद आपका काम है नंबर ऑफ ग्लासेस फाइंड करना जिनमें ये पूरा कर्ड आ जाएगा. ठीक है, कितने ग्लासेस भर जाएंगे इस कर्ड से. तो आपने बड़ी टर्म के साथ स्मॉलर को डिवाइड किया एंड यू गॉट 100 ग्लासेस कैन बी फिल्ड. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा था? इट वॉज हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मेक किलोमीटर. एक कितने सेंटीमीटर्स लगेंगे सो दैट कि 1 किलोमीटर बन जाए. अब सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाना है, देन यू विल काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स हियर. 1 2 3 4 5. आपको 5 स्टेप ऊपर जाना है सेंटीमीटर से किलोमीटर में पहुंचने के लिए. दैट मीन्स कितना गैप है यहाँ पे? 1 लाख का. 1 with 5 0. तो 1 lakh centimeters will form 1 kilometer. Then is page 13. Try these. Question 1. इसमें आपसे पूछा हाउ मेनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम. 1 किलोग्राम बनाने के लिए कितने मिलीग्राम्स चाहिए? तो आप मिलीग्राम से स्टार्ट करिए. 1 2 3 4 5 6. That means 1 with 6 zeros. 10 lakh milligram will be needed to make 1 kg. 10 लाख मिलीग्राम्स आप डालोगे तब 1 kg बनेगा. सेकेंड क्वेश्चन वॉज अ बॉक्स कंटेन 2 lakh tablets and each tablet was having weight 20 milligrams. एक टैबलेट का वेट 20 मिलीग्राम्स था, तो 2 लाख टैबलेट्स का वेट कितना होगा? अगर आपको 1 टैबलेट के लिए वेट गिवन है, देन यू कैन मल्टीप्लाई इट एंड गेट द वेट फॉर 2 लाख टैबलेट्स. तो मैंने 20 को और 2 लाख को मल्टीप्लाई कर दिया, आई गेट 40 लाख मिलीग्राम्स. बट क्वेश्चन में आगे लिखा है कन्वर्ट योर आंसर इन ग्राम्स एज वेल एज केजीज. आपको अपना आंसर किलोग्राम्स में और ग्राम्स में कन्वर्ट करना है. तो पहले मैं ग्राम्स में कन्वर्ट कर रही हूँ. 40 लाख mg को अगर मैं कन्वर्ट कर रही हूँ ग्राम्स में, अगर मुझे मिलीग्राम से, यहाँ मैंने पूरी कन्वर्जन लिखी हुई है, अगर मुझे मिलीग्राम से ग्राम में जाना है तो कितने स्टेप ऊपर जाना है? मिलीग्राम से सेंटीग्राम, देन डेसी और देन ग्राम्स. तो मुझे कितने स्टेप ऊपर जाना पड़ा? 1 2 3. तो मैं 3 zeros के साथ 1 लगाऊंगी और 1000 से 40 लाख को डिवाइड करूंगी. मेरा आंसर मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा. इट इज 4000 grams नाउ.
और जो सेकेंड पार्ट है उसमें लिखा है कन्वर्ट योर आंसर इन केजी। सो मैंने 40 लाख को डिवाइड करना है कितने जीरोस के साथ, लेट अस चेक। मुझे मिलीग्राम को केजी में बनाना है, तो मिलीग्राम से केजी में जाने के लिए कितने स्टेप लगते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मैं 1 with 6 zeros दैट मींस 10 लाख से डिवाइड करूंगी 40 लाख को, all zeros will be cancelled and my answer is now converted into kgs and that is 4 kg now.